Good morning everyone. My name is Lalit Gaikwad, working as an assistant professor, Department of MCA at Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology. Today's topic is graphical method. What do you mean by graphical method? Graphical method is to reduce the matrix of payoff size by using the Dominus rule. There are two types of graphical method. First is a 2 by n and second is a m by 2. What do you mean by 2 by n? 2 row and number of column, that is called 2 row and number of column by using the 2 by n matrix. The second is a m by 2 matrix, number of rows and 2 column, that is called number of row, means a1, a2, a3, a4. There are 4 rows and only 2 column, that is called m by 2 matrix. First of all, given the problem is 2 by n matrix. 2 by n matrix. There are 1, 2, 3, 4, 5. 5 is column and only 2 is row. That is called 2 by n matrix. By using the graphical method, that is called 2 by n matrix, right? First of all, calculate the saddle point. What do you mean by saddle point? Saddle point means row minimum and max column, row minimum and column max. That is called first row calculate the minimum value. Minimum value is -1. A1 to minimum value is -1, right? -1. That is a maximum value is only -1. That column is 1, 2, 3, 4, 5. First column maximum value is 3. Second column maximum value is 4. Third column maximum value is 6. Fifth column maximum value is 2 and fourth column maximum value is 2 and fifth column maximum value is 5. There are 1, 2, 3, 4, 5 column and 5 column is calculate the maximum value, and this column to minimum value is only 2. That is called this point and this point are not same. That is me row minimum and column maximum. Row minimum -1 and column maximum is 2. Both are value are not same. That is called no saddle point. Write down the next step. Clearly there is no saddle because values are not same. That is a no saddle point. Let the player of A play mixed strategy against B. Means अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपन गेम खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, A से अगेंस्ट किसको खेल रहे हैं अपन, B. देयर आर 2 प्लेयर A एंड B. एक अगेंस्ट खेल रहा है B की, इसलिए यहाँ पे बोला है क्लियरली देयर इज नो सैडल पॉइंट. लेट द प्लेयर A प्ले मिक्स स्ट्रैटेजी अगेंस्ट B. मीन्स A जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है B के अगेंस्ट खेल रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या बोला है प्लेयर A मिक्स स्ट्रैटेजी अगेंस्ट B. बाय यूजिंग द this formula P2 equals to 1 minus P1. Then A accepted payoff against is given by this value. Next step is अपन ने यहाँ पे क्या किया है, B strategy. क्यों B strategy किया है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2 row number of column. That is means ओनली यहाँ पे गिवन दिया आपने को 2 रोज और नंबर ऑफ कॉलम दिया, इसलिए ने बी स्ट्रैटेजी में क्या लिया, बी क्यों यहाँ पे एक यूज किया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 राइट. बी स्ट्रैटेजी क्यों लिया है, क्योंकि अपन जो स्ट्रैटेजी मिक्स कर रहे हैं वो किसकी है, प्लेयर बी की है, इसलिए यहाँ पे लिया है बी स्ट्रैटेजी 1 2 3 4 5 राइट. नेक्स्ट स्टेप इज ए एक्सेप्टेड. ए एक्सेप्टेड मीन्स क्या कर रहे हैं, अपन जो गेम खेल रहे हैं वो किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, बी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या है बी स्ट्रैटेजी लिखा है 1 2 3 4 5 और कौन खेल रहा है, ए एक्सेप्टेड मीन्स प्लेयर ए खेल रहा है. यहाँ पे अपन इसलिए क्या किया है, यहाँ पे ए एक्सेप्टेड P1 एंड P2. राइट डाउन दिस फॉर्मूला P2 एंड P1. राइट क्लियर. नेक्स्ट स्टेप इज अपन ने यहाँ पे किया है बी स्ट्रैटेजी 1 2 3 4 5 ए के अगेंस्ट कर रहे हैं, बी के अगेंस्ट कर रही है अपन, इसलिए बी क्या किया अपन ने बी स्ट्रैटेजी कैलकुलेट किया है और ए एक्सेप्टेड क्यों बोला है, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ और अपन अगेंस्ट कर रहे हैं अपन बी के. राइट बी कैंडिडेट है वो क्या अगेंस्ट कर रहा है 1 के, इसलिए यहाँ पे क्या किया अपन ने प्ले ए मिक्स स्ट्रैटेजी अगेंस्ट बी, इसलिए यहाँ पे बी एक्सेप्टेड और पे बी स्ट्रैटेजी और ए एक्सेप्टेड लिखा है. ठीक है. राइट डाउन द पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला. राइट डाउन द पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला P2 इक्वल्स टू 1 माइनस P1. राइट.
देखो अभी ये कैलकुलेट कैसे किया अपन 3p1 मीन्स फर्स्ट रो, मीन्स फर्स्ट रो 3p1 राइट, 3p1 प्लस -2 मीन्स दिस वैल्यू -2 ब्रैकेट 1 minus p1 write down clear, then 1p1 plus 4 1 minus p1. Next step is third row 6p1 plus -1 bracket 1 minus p1 clear, then next -1p1 plus 2 1 minus p1 right clear, then next 5p1 plus 1 minus p1 क्लियर है। यहाँ तक अपन ने क्या किया है कि जो f एक्सेप्टेड है मीन्स मैं जो खेल रहा हूँ वो किसके अगेंस्ट कर रहा है, b के अगेंस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन 2/n का मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं, 2 रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रोज दिए हैंगे वो क्या करेंगे कि जो b वाला है जिसके कॉलम कम है, ठीक है, जहाँ पे 2 प्लेयर रहेंगे तो 2 प्लेयर मीन्स वो क्या करेंगे ए के अगेंस्ट खेलेंगे, जहाँ पे रो दिए नंबर ऑफ और 2 कॉलम दिए तो कॉलम किसके अगेंस्ट खेलेंगे, रो के कॉलम खेलेंगे राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। देन पी की वैल्यू कैसे निकाला मैंने, जो अपन ने यहाँ पे राइट डाउन किए -2 4 -1 2 and 1 -2 4 -1 2 and 1 क्लियर। ये कैसे आपको समझ में आया, क्या यह जो -2 4 -1 2 and 1 राइट डाउन -2 4 -1 2 and 1 एंड देन P2 की वैल्यू मीन्स 3 1 6 -1 5 राइट डाउन द दिस कॉलम राइट। कैसे लिया मैंने, जस्ट लाइक आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो हाउ टू कैलकुलेट द A1 मीन्स P1 वैल्यू सॉरी P2 वैल्यू, A1 मीन्स P2 वैल्यू और A2 मीन्स P1 वैल्यू। सीधा सिंपल ऐसे भी लिख राइट डाउन कर सकते हैं, नहीं समझाऊंगा यहाँ से नहीं समझ में आता होगा तो ऐसे रो वाइज कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द 2/n मैट्रिक्स क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने क्या किया है, डिपेंडिंग ऑन दिस टेबल ड्रॉ द ग्राफ, डिपेंडिंग ऑन दिस टेबल ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया अभी मैंने, ए एक्सिस और बी एक्सिस, 2 लाइन ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे किया है क्लियर, ए एक्सिस और बी एक्सिस क्लियर। मैंने उसको नाम दिया P1 = 0, इसको नाम दिया मैंने P2 = 0। क्यों दिया है मैंने, दैट मीन्स अपने को क्या करना है, P1 और P से ही अपने को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, ग्राफ में एक बीच में लाइन दी है 0 0, ऊपर की वैल्यू प्लस निगेटिव पॉजिटिव रहेंगी, नीचे की वैल्यू निगेटिव रहेंगी। यहाँ तक आपको ये समझ में आता होगा। जब भी अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले जो बीच वाला पॉइंट रहता है वो अपना 0 का रहता है, उसके ऊपर का पॉजिटिव रहता है, उसके नीचे का निगेटिव रहते हैं। दैट मीन्स क्लियर है आप लोगों के, आप लोगों ने पढ़ा है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5 क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद अपन ने क्या किया, इसमें ड्रॉ किया है -2 3 -2 और 3, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया। देन उसके बाद 4 1 मीन्स इससे देखना है अपने को P1 से 4 कौन सा पॉइंट है, ए, और 1 कौन सा पॉइंट है, ये सॉरी 4 and 1 दिस पॉइंट राइट डाउन। -1 और 6, यहाँ से -1 देखना है और यहाँ से 6 देखना है क्लियर है। देन उसके बाद 2 P1 से 2 और -1 मीन्स ये वाला पॉइंट, वहाँ से लाइन ड्रॉ किया मैंने। उसके बाद 1 मीन्स दिस पॉइंट और 5 मीन्स दिस पॉइंट। मैंने अपने ग्राफ रेडी किया है। ग्राफ रेडी करने के लिए डिपेंडिंग ऑन दिस टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद अभी यहाँ तक तो इजी वे था, अभी डिपेंडिंग ऑन दिस अपने को 2/n ड्रॉ करना है, 2/n मैट्रिक्स सॉल्व करना है बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। उससे वजह से अपन क्या करेंगे, अभी जब भी अपन 2/n का ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, ग्राफ ड्रॉ होने के बाद अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमीन। व्हाट डू मीन बाय मैक्सिमीन, मीन्स अपने को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द डोमिनोज रूल्स राइट। तो अपन ने क्या किया, जब भी अपन 2/n का मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम। मैक्सिमम कैलकुलेट कैसे करना है, डिपेंडिंग ऑन ग्राफ राइट।
तो सबसे पहले चेक करना है ग्राफ ड्रॉ होने के बाद सबसे लास्ट पॉइंट उसमें से क्या करना है, क्रॉस वाला पॉइंट चेक करना है। ये भी क्रॉस है, ए भी क्रॉस है, ए भी क्रॉस है, बट ए भी क्रॉस है। पर मैंने क्या बोला है, जब अपन 2/n का मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ होने के बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, ये है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, ड्रॉ किया है और इसका क्रॉस पॉइंट देखा है, जो क्रॉस पॉइंट 1 2 3, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉइंट, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉइंट। बस सबसे लास्ट वाला देखना है, किसमें, जिसमें देखना है अपने को 2/n में। ले लिया मैंने, एक क्रॉस वाला पॉइंट है, इसके अपॉन से अपन को क्या करना है, 2/2 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, राइट। ये मेरा क्रॉस पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है बाय यूजिंग द डोमिनोज रूल्स। अपने को क्या करना है, देन उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया, सबसे लास्ट वाला पॉइंट मेरा ये है, उसकी क्रॉस वाली वैल्यू चेक करना है। क्रॉस वाली वैल्यू चेक करी, यहाँ पे मैंने बोला A1 A2 1 और 2, राइट। ये मेरा क्रॉस पॉइंट हो गया। अभी मैंने इसकी वैल्यू क्या है, 3 3 -2, 3 और -2, क्लियर है। एक कैसे आया पता है आप लोगों को, डिपेंडिंग ऑन ग्राफ 3 और -2, 3 और -2, राइट। देन उसके बाद 2 वाला -1 मीन्स ये -1 और ये मेरा 2। सबसे पहले नीचे ऊपर से नीचे जाएगा, देन ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये होने के बाद अपने को क्या कैलकुलेट करना है, P1 P2 P3 P1 P2, ठीक है, सॉरी P1 Q1 P2 Q2 और वैल्यू ऑफ गेम। डिपेंडिंग ऑन दिस पॉइंट अपने को क्या करना है, वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करना है। वो वैल्यू ऑफ गेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द दिस मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड 2/2 मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड m/2/n, राइट, क्लियर है। हाँ, अभी मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट डाउन द फॉर्मूलेज। वो फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए थे डोमिनोज रूल्स में। P1 equals to P2 equals to write down the formulas. P1 equals to 822 minus 821 divided by A11 plus 822 minus 812 plus 821. Write down, put the value of this formula. 821 की वैल्यू, 822 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 822 की -2 डिवाइडेड बाय A11 3 प्लस 822 2 माइनस 812 -1 प्लस 821 -2, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 3 + 5 माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 4 × 1 2। इसका आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। P1 की वैल्यू क्या है अपनी, 1 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद Q1 इक्वल्स टू 822 minus 812 divided by A11 plus 822 minus 812 plus 821. Write down, calculate the Q1. 822 value is 2 minus 812 value is -1, right, divided by A11 3 plus
A22 2 minus A12 value is -1 plus A21 -2 divided by minus minus plus 3 divided by 8, राइट. देन उसके बाद P2 इक्वल्स टू 1 माइनस P1 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 2. देन उसके बाद Q2 वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 divided by 8, right. 3 divided by 8, 1 minus 2 divided by 8. Then next is a value of game equals to A11 A22 minus A12 minus A21 divided by A11 plus A22 minus A12 plus A21. Put the value of this formula and calculate the answer, right. A11 means -2 into A12 means 2 minus A12 means -1 into A21 minus 2 divided by A11 3 plus 2 minus A12 minus 1 plus A21 is -2 divided by answer 2 by 2 minus 4 minus minus plus 2 by 2. देन उसके बाद यहाँ पे आएगा 5 minus 3 was 2 minus plus 7 divided by 8. That is the value of game. Clear. ठीक आहे. हा एक झाला. आता दुसरा घ्यायचा आहे.